हेलो वॉरियर्स। आज के चैप्टर के लिए क्या है, आप तैयार है? हाँ जी गाइज, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फ्री फास्ट ट्रैक सीरीज। फ्री फास्ट ट्रैक सीरीज में स्पेशल क्लासेस में प्रोफेशनल केस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल ऑडिट भी कंप्लीट हो चुका है। Liabilities of auditor, CFS and many more chapters are posted on this particular YouTube channel. तो फ्री फास्ट ट्रैक बैच में आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑडिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। सो प्लीज मेक श्योर आपने एक प्लेलिस्ट बना दिया है एंड सीक्वेंशली ये सारे लेक्चर्स देख रहे हैं। And also guys, I have received lots of queries with regards to the regular batches for CA final. Yes, we will be launching some plus batches, the live batches on Unacademy YouTube channel. So you can use the code AuditSAR in order to subscribe to this batches. Chale, without any further delay, let's get started with today's topic. Launch the chapter that is quality review. So audit firm should have a system of quality control to provide the reasonable assurance to comply, whether they are complying with the technical standards, regulatory requirements, and whether the audit report which is issued, that is appropriate. हम लोग ये चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। So the very easy pointers you will be able to see out over here. वहाँ पे पता है peer review में एक major answer देखा था हम लोगों ने कि what are the areas of review, है ना? एरियाज ऑफ रिव्यू में 6 पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पे भी हम लोग यही कहेंगे कि whenever quality review board is requiring any audit firm to conduct the quality review, वहाँ पे the major functioning will be that every firm should include the policies and procedures for LEHAM. ऐसे 220 क्लिक हो रहा है, LEHAM, लीडरशिप, ethical requirements, acceptance and continuance, human resource and engagement performance. So वहाँ पे भी peer review में areas बताए थे, यहाँ पे भी same pointers हैं। ये देखो यहाँ पे areas. So what are the important areas of quality review? Mark this question as an expected exam question. Question bank में audit के सवाल में भी इसका एक question है. So छोटे छोटे pointers हम लोग साइड में लिखते जाएंगे. So what are the areas of quality review? पहला, whether the firm has established the policies and procedures in order to have systems of quality control in place. तो पहला तो हम लोग ये देखेंगे policies and procedures design, implement और maintain की है कि नहीं. दूसरा, हम चाहते हैं कि एंगेजमेंट जो हो रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, EQCR हो, एंगेजमेंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो. तो वेदर द एंगेजमेंट जो ऑडिटिंग एंगेजमेंट है उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है कि नहीं. तीसरा, ये एरिया देखेंगे कि जो भी लोग क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं उनके खुद के पास एक्सपीरियंसेस है कि नहीं है, एक्सपीरियंस. फोर्थ, हम लोग चाहते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, अगर ऑडिट फर्म ये दावा कर रहा है कि वी आर इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग द वर्क, हमने जो भी क्लाइंट का रिव्यू किया है हम लोगों ने ये देखा है कि बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. तो हैव यू ऑब्टेन्ड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अ कंफर्मेशन दैट यस यू आर मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लाइंट, कि हमारा और क्लाइंट का कोई रिश्ता नाता नहीं है. ऑल्सो whenever you are accepting the new client or continuing the old client, you are very sure that you are not compromising with the ethical requirements. So before acceptance and continuance you have appropriately confirmed that yes, this is the client जिसका audit मैं कर सकता हूँ. That is acceptance and continuance. And the last point, in a regular interval of time the firm is appropriately providing the training. So these are the 6 major areas जो क्वालिटी रिव्यूअर जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकल रिव्यूअर अफूर ऑडिट फर्म में जाकर के चेक करेगा. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. So this is a question which is already there in audit ke sawal. What is the question? The question says, whenever the technical reviewer visits the audit firm, what are the areas of evaluation? These are the 6 areas of evaluation.
पीयर रिव्यू में भी पढ़ा था द स्कोप, वहां पे बोला था पीयर रिव्यू का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है व्यू, यहाँ पे बोलेंगे क्वालिटी रिव्यू का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स है रिया। ठीक है, व्हाट इज रिया? पहला, टू रिव्यू द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, to review that the firm maintains a quality control and evaluations of audit quality, to identify and address the weaknesses in the deficiencies and adherence with the statutory and the regulatory norm। जो भी ऑडिट फर्म को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग रिया चेक करेंगे। सो रिया इज फॉलोइंग अंडर द ऑब्जेक्टिव्स। स्कोप में क्या क्या चीजें आएगी? पहला, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे, कंप्लायंसेस विद ऑल टीईपी, याद आ रहा है, टेक्निकल एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, whether they comply with all the relevant laws and regulation. Audit firm under review has implemented appropriate quality control system, and last, there is no material misstatement in the assets and liabilities for the entity for which you have given the report। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा स्कोप में आता है कि हम लोग ये सारा चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो इट इज रिया, रिव्यूइंग द एस्पेक्ट्स, रिव्यूइंग द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस, अधेरिंग टू दैट वीकनेसेस एंड अधेरेंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लॉ। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अच्छा, टेक्निकल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? सेम एज पीयर रिव्यू, द प्रीफेस टू एसएज, एसआरई, एसएई, एसक्यूसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, प्रेजेंटेशन, दैट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेबल एसक्यूसीज एंड एसएज, notification, directors guidelines, guidance note, any other documentary issued by ICAI and other relevantary documents में हम लोग कहते हैं pronouncements and code of ethics। ठीक है, guidance note over accounting and auditing and code of ethics। So all these things will be regarded as the technical standards। technical standards पे एक छोटा सा क्वेश्चन मॉड्यूल में देकर के रखा है कि what actually are the technical standards when the technical reviewer will be reviewing audit firm under review। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होगा? सेम एज पीयर रिव्यू। इसके बाद आगे कुछ आगे, वहां पे भी हम लोगों ने पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में पढ़ा था। सेम, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में कितने लोग होते हैं? टोटल 11 लोग होते हैं। टोटल 11 लोग होते हैं। 11 में से एक पर्सन होगा हमारा चेयरमैन, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी के 10 मेंबर्स ऑफ दैट बोर्ड होंगे, उसमें से भी 5 तो 5 इधर नॉमिनेटेड बाय ICAI, 5 उधर नॉमिनेटेड बाय CG। सो आउट ऑफ 10 मेंबर्स, 5 नॉमिनेटेड बाय CG, 5 नॉमिनेटेड बाय ICAI, 1 एक्टिंग एज ए चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय CG। क्योंकि पूरा कार्यक्रम कौन देख रहा है? ये पूरा कार्यक्रम CG ही तो देख रहा है। CG ही को तो है कि यार ऑडिट सही से होना चाहिए, ये जो कंपनी है उसके ऑडिट सही से होने चाहिए, सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे कंपनी में। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ QRB। अभी देखो, बोर्ड स्थापित तो कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब ये बोर्ड के पास क्या पावर है? सबसे पहला, टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द वर्क्स एंड सर्विसेज, टू ले डाउन सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएशन के कैसे हम लोग रिव्यू कंडक्ट करें, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, किससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे? वेट, यू रिमेंबर पीयर रिव्यू? अभी सारा का सारा डिस्कशन ना विज़ चलने वाला है। ठीक है, पीयर रिव्यू में पीयर रिव्यू बोर्ड वाज अलाउड टू आस्क फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ यूडिन के कितना ऑडिट किया, कितना यूडिन जनरेट किया, एक्सेट्रा। So you can call for the information from the members of institute, मेंबर से मांगो, या फिर द कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है उनसे मांगो। इफ द मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं हूँ QRB, मैंने ये फर्म को कहा कि फर्म आपने जितने जितने क्लाइंट्स का ऑडिट किया ना पूरा डिटेल्स दे दो, उन्होंने मुझे डेटा ही नहीं दिया, तो अब मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के पास जाऊंगी, ICAI आप मुझे बताओ कि कितना ऑडिट किया इन्होंने, ये बंदा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, आप मुझे बताओ क्या क्या होना चाहिए। दूसरा, वी कैन इवन कॉल फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट ये अफूर ने किया है, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू। इफ दे फेल टू गिव मी इन्फॉर्मेशन, तो मैं इनके माए बाप के पास जाऊंगी, MCA, CG। सो बोर्ड में रिक्वेस्ट CG, MCA फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। QRB के पास पावर क्या होता है? टू इनवाइट एक्सपर्ट्स ओपिनियन, टू मेक रिकमेंडेशंस कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सो क्या क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द पावर्स ऑफ QRB? अब देखो एक छोटी सी कहानी, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये है हमारा आज का कैरेक्टर। नाम दे देते भाई साहब को, मिस्टर समय। यही तो नहीं है हमारे पास, है ना? ये है मिस्टर समय। समय भाई साहब एक छोटे से गांव में, छोटे से गांव में रहते हैं। ठीक है, एक छोटे से गांव में रहते हैं। और ये है समय के मम्मा और पापा। ठीक है, अब समय के सपने बहुत बड़े बड़े थे। समय गया मम्मी पापा के पास और मम्मी पापा के पास जा करके बोलता है कि माँ, मुझे शहर जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा अपना नाम बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी है माँ। तो मम्मी पापा तो टेंशन में आ गए कि यार ये समय तो एकदम ही मतलब गांव में रहने वाला इंसान बड़े शहरों में अकेला कैसे जाएगा। मम्मी पापा टेंशन में थे। फिर समय ने बोला कि मम्मी यू डोंट वरी टू मच, आई विल गो। तो इतना बोलने में पापा को एकदम से याद आ गया कि पापा के जो छोटे भाई हैं, काका, चाचा, है ना, अंकल, ये अंकल रहते हैं शहरों में, मुंबई। ठीक है, ये अंकल रहते हैं मुंबई। तो पापा ने किया अंकल को फोन के, सुन भाई छोटे, समय आना चाहता है मुंबई, बड़ा आदमी बनना है उसे और बहुत मेहनत करेगा। तो तू जरा देख ले, जरा कुछ दिन तेरे तेरे वहां रख, तेरे वहां रहने को कह देना, फिर उसके बाद वो हॉस्टल हॉस्टल में रह लेगा। पापा ने सारा सारा प्लान बिठाया। समय उड़ करके आ गया है मुंबई। ठीक है, अब समय आ गया है मुंबई। मुंबई, अब मुंबई में उसको कौन मिले हैं? मुंबई में मिले हैं अंकल, आंटी। अंकल और आंटी, ठीक है, ये दो जन मिले हैं। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर हम लोग कहने जाए कि समय को हॉस्टल में एडमिशन मिला कि नहीं मिला, समय को रहने के लिए जगह मिली कि नहीं मिली, मुंबई में हु डू यू फील, बड़े शहरों में हु डू यू फील कि समय की मदद कौन करेगा? मम्मी पापा करेंगे या अंकल आंटी करेंगे? गोज विदाउट सेइंग अंकल आंटी करेंगे। अंकल आंटी करेंगे। अब देखो, मेरी पूरी स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन है? ये मम्मी पापा जो है ना, अपने मम्मी पापा तो अपने मम्मी पापा हुए, ये है हमारे QRB। अंकल आंटी जो है ना, वो है हमारे नेफ्रा, NFR है। समय जो है ना, वो है हमारा अफूर, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। अंडर रिव्यू। अब देखो हुआ क्या। मैम ये सब क्यों ऐसा बताया, समझो। जो भी ऑडिट फर्म छोटी छोटी कंपनीज का ऑडिट करता है ना, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलता है कि उस अफूर की क्वालिटी के बारे में चेक मैं कर लूंगा। नेफ्रा केम इनटू पिक्चर और नेफ्रा कहेगा कि रुको, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वेट, अगर आपका समय बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट कर रहा है, तो द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटिंग एंगेजमेंट फॉर दैट बड़ा बड़ा कंपनीज विल बी रिव्यूड बाय नेफ्रा एंड ना कि सिर्फ अफूर। यहाँ पे ध्यान दो, समय ने ऑडिटिंग की है कोई बड़ी बड़ी कंपनी की, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ठीक है, इन सारी कंपनीज का जो ऑडिट किया, एज वेल एज अगर इनकी मटेरियल सब्सिडरी, अगर इनकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिट किया है, नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस नेफ्रा कहता है इन सारे कंपनियों का ऑडिट हुआ है ना, तो ऐसे ऑडिट फर्म का रिव्यू, ऐसे ऑडिट फर्म का रिव्यू मैं खुद करूंगा। क्या कहा अफूर ने? ऐसे ऑडिट फर्म जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज एज वेल एज उसकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिट किया है, उसका देखरेख मैं करूंगा। हाँ, अगर अंकल आंटी थक जाए, अफूर एकदम ही बेकार सा काम कर रहे हैं, अगर अंकल आंटी कहे कि बड़े भाई साहब सुनिए जरा, या फिर अंकल आंटी मम्मी पापा को फोन कर दे और मम्मी पापा से कहे कि यार अभी ये समय का काम आप ही देखो, नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस अगर नेफ्रा इज मेकिंग रेकमेंडेशन, क्या कर रहा है? नेफ्रा इज मेकिंग रेकमेंडेशन टू QRB
ओनली इन दैट केस वो लोग इस अफूर के क्वालिटी का इवैल्यूएशन करेंगे। समझ में आता है? मतलब द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू इज देयर आर सम कंपनीज जिसका ऑडिट की क्वालिटी का ठेका किसने लेकर के रखा है? नेफ्रा ने। सो नेफ्रा ही उन बड़ी बड़ी कंपनीज एज वेल एज उनकी मटेरियल सब्सिडरी कंपनीज का जो ऑडिट हो रहा है ना, उसका क्वालिटी चेक करेगा, अनलेस नेफ्रा हैज मेड रिकमेंडेशन टू क्यूआरबी। तो जब तक नेफ्रा क्यूआरबी को नहीं बोलता तब तक क्यूआरबी विल नॉट कम इनटू पिक्चर। तो मैम एज पर रूल नेफ्रा कौन से बॉडी कॉर्पोरेट को कवर करता है? नेफ्रा कवर्स ऑल द लिस्टेड एंटिटीज। नेफ्रा कवर्स ऑल द अनलिस्टेड एंटिटीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 सीआर या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 1000 सीआर या इससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट डिबेंचर्स 500 सीआर या इससे ज्यादा है, स्पेशल कंपनीज कवर्ड अंडर सम स्पेशल एक्ट जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और एनी अदर रेफरेंसेस व्हिच आर मेड बाय सीटी, एज वेल एज इन सबकी मटेरियल सब्सिडरी। मतलब क्या? एनी बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच इज द सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ दीज कंपनीज जिसका नेटवर्थ इज मोर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। समझा? इसका मतलब मैं आपको एक बार समझाती हूँ फिर से। जैसे कि दीज आर द कंपनीज, ठीक है, ये है एक होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी विच इज अ बड़ी कंपनी। इसकी एक सब्सिडरी है ए, दूसरी है बी, सी, डी, ठीक है। इसका टर्नओवर है 100 करोड़, इसका टर्नओवर है 2 करोड़, इसका टर्नओवर है 50 करोड़, इसका टर्नओवर है 3 करोड़, इसका टर्नओवर है 1 करोड़। अब जब ये पेरेंट कंपनी कंसोलिडेशन करेगा उसके लिए मटेरियल सब्सिडरी कौन सी मानी जाएगी? बी। क्यों? क्योंकि बी का टर्नओवर कुल टर्नओवर में पूरा नेटवर्क जब भी हम लोग टर्नओवर नहीं नेटवर्क पूरा नेटवर्क जब भी हम लोग कंसिडर करेंगे, फुल नेटवर्थ इज ऑफ 150 CR plus 256 156 CR 156 CR में 50 CR का नेटवर्थ बी का है। बी हमारे लिए मटेरियल हुई कि नहीं हुई? ठीक है। सो ऑडिट ऑफ पेरेंट एज वेल एज ऑडिट ऑफ दिस मटेरियल सब्सिडरी which is incorporated outside India will be under the purview of NEFRA. NFRA. NFRA. Done, done, done. So this is a very important, beautiful concept. And हाँ, ये जो मटेरियल सब्सिडरी के बारे में बात हो रही है ना, मटेरियल सब्सिडरी एसोसिएट, दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जिनकी टोटल कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ इज मोर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। ये पूरी कहानी समय भाई साहब की समझी है आपको? यस। सो दैट वाज अ ब्रिलियंट कंसेप्ट ऑफ क्यूआरबी, नेफ्रा, कंपनीज and material subsidiaries of these companies which are under the purview of NEFRA. चलो अब आगे चलिए। This is also very important concept, very important. Quality review में भी कुछ ऐसी सर्विसेज है which are not included. Wait. Peer review वाले concept में we had some kind of services जो assurance services से exclude कर दी गई थी. There was an answer which we studied कि these following services will not be included under assurance services. In the similar manner, कुछ ऐसे ऑडिट्स है जो क्वालिटी रिव्यू के परव्यू में नहीं आते। What are कुछ ऐसे ऑडिट्स है जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। क्या ये वाले ऑडिट्स आपके क्वालिटी रिव्यू में आते हैं? नहीं, ये सारे तो कंपनी इंटरनली करवा रहा है ना। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का सबसे मेजर एस्पेक्ट जो हमें चेक करना है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज। ठीक है। सो ये वाला कंसेप्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट आर द सर्विसेज included under the purview of quality review check and what are excluded from this review. So inclusions क्या होगा? Inclusions होगा भाई साहब the quality of statutory audits and the reporting, the quality framework which are adopted by AFUR audit firm under review conducting statutory audit. What are the exclusion? This procedures will not extend to review of internal audit, tax audit, GST audit, other special purpose audit, review of the services,
एनी अदर थिंग्स जो आप अदर एम्प्लॉयमेंट्स में हो, अदर एम्प्लॉयमेंट में शायद आप कंपाइलेशन सर्विसेज दे रहे हो, आई विल नॉट इंक्लूड दिस अंडर माई रिव्यू। समझ में आ गया? पक्का? सो एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स के क्राइटेरिया में दिस इज वन ऑफ द एमसीक्यू। कंसेप्ट बहुत छोटा है बट एमसीक्यू में आ सकता है कि अफूर ने जीएसटी ऑडिट दिया, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू ने जीएसटी ऑडिट सर्विसेज दिया, यू आर द टेक्निकल रिव्यूअर, क्या आप जीएसटी ऑडिट सर्विसेज की क्वालिटी चेक करोगे? नहीं, दिस इज फॉलिंग अंडर एक्सक्लूजन्स। समझ में आया? पक्का? चलो अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फॉर्म। बिग कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, समझो। When we talk about audit firm, क्वालिटी रिव्यू एंड पीयर रिव्यू में कुछ तो सिमिलैरिटीज है जो प्रोसेस के बारे में बात करें। पहले हम लोग ने वहां पे पीयू को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम लोग ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करेंगे। बट सिलेक्शन कौन से क्राइटेरियाज के हिसाब से होंगे? दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहला, बेस्ड ऑन द एंटिटीज ऑडिटेड, मतलब अफूर ने कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी को ऑडिट किया है। दूसरा, बेस्ड ऑन द ऑडिट फर्म कि खुद के फर्म में कितना काम है, वॉल्यूम कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इन लोगों ने रिपोर्टिंग किन चीजों के बारे में दी है। एंड तीसरा, अ नॉर्मल साइकिल, क्वालिटी रिव्यू साइकिल। तो सबसे पहला बात पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द ऑडिट ऑफ एंटिटीज। सो ऑडिट ऑफ एंटिटीज में अगेन वी हैव इंटरनल सब पॉइंट्स। सो बेस्ड ऑन द क्लाइंट, द कंपनीज जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट किया है आर डिपेंडेंट ऑन दिस। पहला, entities other than, just look at the word, entities other than those covered under rule 3(1) of नेफ्रा। क्यों? क्योंकि वो लोगों का तो क्वालिटी नेफ्रा चेक करेगा, है ना। जो नेफ्रा के परव्यू में है उसको नेफ्रा देख लेगा भाई, जो नेफ्रा के परव्यू में नहीं है उसका सिलेक्शन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करेगा। द कंपनीज में बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जिस कंपनी में मेजर नॉन कंप्लायंसेस पाए हो, ये फलाना फलाना कंपनी है, ये फलाना फलाना कंपनी में सुपर फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बार इनकम टैक्स की पेमेंट में लोचे, हर बार कंप्लायंसेस ऑफ लॉ में लोचे, अगर ऐसे कंपनी का ऑडिट इस अफूर ने किया है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलेगा इसको देखो, क्वालिटी चेक करो, सही से तो ऑडिट कर रहा है ना। पता चला कि कंपनी तो बहुत शाना है, फ्रॉड वॉड कर रहा है, नॉन कंप्लायंस कर रहा है, मेजर इरेगुलरिटीज है और ये ऑडिट करने में कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम ही लीनियंट है, पब्लिक के साथ गलत हो जाए। ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन पहला मेजर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ रेलेवेंट शेड्यूल। रिस्क बेस्ड सिलेक्शंस, जो सेक्टर का ऑडिट आप कर रहे हो उसमें रिस्क बहुत है टू द स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स का ऑडिट हो रहा है जहाँ पे हमको ससेप्टेबिलिटी है यार, खूब रिस्क है, खूब रिस्क है, एंड यहाँ पे अगर नेग्लिजेंस की ना तो यार मासूम शेयर होल्डर्स का पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सीरियस इरेगुलरिटीज इज बीइंग सीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी कंपनीज का ऑडिट जो भी ऑडिट फर्म कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, विल सिलेक्ट दिस फर्म। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जॉइंट ऑडिट्स। अगर कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है जहाँ पे जॉइंट ऑडिट हो रहा है, तो जितने लोगों ने जॉइंट ऑडिट किया सबको QRB सिलेक्ट कर लेगा एंड उन लोगों को बोल देगा कि भाई करवा लीजिए आप आपका क्वालिटी रिव्यू चेक। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर बोर्ड को ऐसा लग रहा है टू असेस द क्वालिटी, बोर्ड में रिव्यू द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अफूर विद अ व्यू टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, टू रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग विच आर मेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्वालिटी ऑफ द फ्रेमवर्क, बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क जो अफूर ने इम्प्लीमेंट किया है ऑन अ रेफरेंस। मतलब क्या, QRB को रेफरेंस मिला है बाय नेफ्रा, बाय सेबी, बाय MCA, बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, RBI, सेबी, IRDA, MCA, नेफ्रा, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यार तुम्हारा ऑडिट फर्म कैसा रिपोर्ट देता है। अगर ये रिकमेंडेशन आया तो QRB सिलेक्ट कर लेगा ऐसे अफूर। नेक्स्ट, कंप्लेंट्स जो है, अगर कंप्लेंट्स मिली है तो देखो थोड़े बहुत ऐसे जलन करने वाले लोग भी होते हैं ना, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि ये है ऑडिट फर्म से जलने वाले बहुत लोग हैं, है ना, होता है कोई लोग जो लोगों की तरक्की से जलते हैं, है ना। तो हुआ क्या है, ये ऑडिट फर्म के जलने वाले लोग हैं ये लोग, एंड इन्होंने जा करके QRB को कंप्लेन कर दी कि यार ये क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं करता। अननेसेसरी नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाना लोगों का तो काम ही होता है आजकल ये सारा। तो क्या QRB ये जलन करने वाले लोग या फिर ये झलकुकड़े लोग, ये इंडिविजुअल लोग
इन लोगों की कंप्लेंट सुन लेगा? नहीं सुनेगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बोलेगा आई विल नॉट एंटरटेन एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल और द फर्म, एनी कंपनीज, कोई पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, ऐसा है, आई विल नॉट डू दैट। ये सारा का सारा विल कंटिन्यू टू बी डेल्ट बाय द डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट ऑफ ICAI। अगर आपको कोई कंप्लेन है, आपको लग रहा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ऑडिट सही से नहीं हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के नाते एथिक्स के कारण में, एथिक्स के अंदर जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, उस डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को जाकर के कंप्लेन कीजिए, डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को जाकर के कंप्लेन कीजिए। वो सारा चीज हम हैंडल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ऑन रैंडम बेसिस सुयो मोटो किसी भी ऑडिट फर्म को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर रिव्यू। एंड लास्ट, QRB सेक्रेटरी should place the details of the entities, audit firm which are selected for review before the board. So board के सामने हम लोग सारी entities का details रखेंगे and board में consider, जो secretary ने जो सारा information रखा है, board में consider all the cases which warrants, सर यार इसका review करवाओ, इसका review करो। मुझे ना एक सीन याद आ रहा है, अनिल कपूर वाला सीन, नायक मूवी का सीन, एंड यहाँ पे ना एक ऐसा पूरा ऐसे गट्ठर भर करके नॉन कंप्लायंसेस का रिपोर्ट लेकर के आता है परेश रावल। एंड अनिल कपूर पूछता है कि परेश रावल क्या करना चाहिए इन सारे लोगों को, तो बोलता है निकाल देना चाहिए, तो बोलता है रेजिग्नेशन साइन कर दो, सरेंडर करवा दो इन लोगों को, सस्पेंड करवा दो इन लोगों को। याद आ रहा? सेम थिंग हैपेंस विद QRB। सेक्रेटरी आता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के QRB के पास। QRB को कंपनीज की, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की, सारे असेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, सारे असेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। एंड ये सारे केसेस QRB देखने के बाद बोलेगा कि हाँ यार इनका रिव्यू करवाओ। एंड बोर्ड विल ऑब्टेन एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द एंटिटीज जो कंसर्न है, जिसका ऑडिट इस ऑडिट फर्म ने किया है। सो एक मिनट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वी वर सिलेक्टिंग द मेथड्स via which we were selecting the methods via which audit firms are selected. The first method via which the audit firms are selected are on the basis of the clients. दूसरा है on the basis of the firm itself, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ फ्रॉड पर्सन ज़्यादा है, रैंडम सिलेक्शन है, ऑडिटिंग लार्ज, मिड साइज, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, इन लोगों का ऑडिट आपने किया है तो आपका सिलेक्शन होगा कि चलो रिव्यू करवाओ। Last but not the least, on the basis of review cycle. What is on the basis of review cycle? See, based on number of partners, we will have a review cycle. अगर आपके ऑडिट फर्म में up to 10 पार्टनर्स है, that is 1 से लेकर के 9 पार्टनर्स है, then at least once in 5 years आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके फर्म में 10 से लेकर के 19 पार्टनर्स हैं, 10 to 19, तो once in 4 years आपको क्वालिटी रिव्यू करवाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके फर्म में 20 या इससे ज्यादा पार्टनर्स है, एवरी 3 years में आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा, मोर देन इक्वल्स टू 20। ठीक है? सो मैम एक मिनट, एवरी 3 years में रिव्यू करवाने का क्या मतलब होता है? आपके ऑडिट की क्वालिटी का चेक करना कि कहीं आप नेग्लिजेंस तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप फ्रॉड में शामिल तो नहीं हो, कहीं आपने इरेगुलरिटीज को ओवरशैडो तो नहीं कर दिया, कहीं आप डिपेंडेंट तो नहीं हो, कहीं आपका रिपोर्टिंग इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों का रिव्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीयर रिव्यू में ये सेम पॉइंट था बच्चों कि हम लोग जब भी ऑडिट फर्म में जाएंगे तभी हम लोग ऑडिट फाइल्स को उठाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग ऑडिट फाइल्स को उठाएंगे। तो हम लोग कितने ऑडिट फाइल्स को उठा सकते हैं? So up to 3 audit engagement of audit firm under review may be selected by the board, as considered appropriate. ठीक है? But during the period अगर हमको ऐसा लगता है कि geographical area, risk, volume को मद्देनजर रखते हुए हमको ज़्यादा ऑडिट एंगेजमेंट को रिव्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं। इन एब्सेंस ऑफ एनी एडवर्स फाइंडिंग इन पास्ट, नॉट मोर देन 1 एंगेजमेंट, बोलता है कि अगर प्रीवियस सारा का सारा रिकॉर्ड इनका क्लीन है तो खाली एक ही एंगेजमेंट को सिलेक्ट करो। मोर कैन बी सिलेक्टेड बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग। ठीक है? सो हाउएवर इन केस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग, पिछले टाइम जब भी हम लोगों ने रिव्यू किया था
ऑडिट फर्म की जो डेफिशिएंसीज थी भर भर करके सामने आई थी। तो इस बार जब भी हम लोग रिव्यू करेंगे, हम लोग कहेंगे कि यार थोड़ा ज़्यादा एंगेजमेंट को रिव्यू करने दो ना। सो इन केस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग इन पास्ट और इन एनी अदर सिचुएशन, QRB में कंडक्ट क्वालिटी रिव्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगेजमेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज मोर देन 3 एंगेजमेंट सिलेक्ट करवा सकते हैं। मैम एडवर्स फाइंडिंग नहीं है तो कुछ नहीं, एडवर्स फाइंडिंग नहीं है तो एक ही एंगेजमेंट का रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस, अब ये प्रोसेस में भी पीयर रिव्यू में 4 स्टेज थे, यहाँ पे 3 स्टेज। सबसे पहला सिलेक्शन होगा, एम्पेनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। इसके बाद इन दोनों को नोटिस भेजा जाएगा कि ये है ऑडिट फर्म, ये है टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म विजिट करेगा, टेक्निकल रिव्यूअर सारी क्वालिटीज को इवैल्यूएट करेगा एंड रिपोर्टिंग देगा टू QRB। रिपोर्टिंग देने के साथ साथ देयर इज एडिशनल पर्सन हु इज गोइंग टू प्ले रोल, दैट इज QRG, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अब ये क्वालिटी रिव्यू ग्रुप वगैरह क्या है समझो इसको। QRB टेक्निकल रिव्यूअर अफूर, तो QRB will seek services from the technical reviewer, technical reviewer will review the quality of अफूर। इसके साथ साथ बच्चों एक मैंने आपको कहा एक ऐसा बॉडी आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अभी एक मिनट, एक कंसेप्ट समझो। ये है ऑडिट फर्म जिन्होंने ऑडिट किया है ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC, कोई फॉरेन कंपनीज एक्सेट्रा। एक टेक्निकल रिव्यूअर है जिनको ना बैंक के बारे में कुछ पता है, ना इंश्योरेंस के बारे में, ना NBFC, ना PSU, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है टेक्निकल रिव्यूअर क्या टेक्निकली ये सारा चीज कर पाएगा? Hence, we have someone named as quality review groups. So, quality review groups दो प्रकार के होते हैं। पहला, industry specific groups, दूसरा generic groups। दूसरा generic group जो general knowledge रखता है। So, each QRG will have technical reviewers in the group, assisted by technical reviewer. The job of technical reviewer would be to prepare the reports of the statutory audit function by AFUR with a view of assessing the quality of auditing. इन्होंने क्या फ्रेमवर्क किया? सो ये है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। इस ग्रुप में जो लोग बैठे हैं जिसको बोलेंगे हम लोग टेक्निकल रिव्यूअर्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इन्हें हम कहेंगे टेक्निकल रिव्यूअर्स। अब ये जो रिव्यूअर्स है, ये रिव्यूअर्स एक्चुअली जाकर के अफूर की ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करेंगे। ये ऑडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के बाद टेक्निकल रिव्यूअर अपना रिपोर्ट QRG एज वेल एज QRB को दे देगा। ये लोग इवैल्यूएट करेंगे कि भाई क्वालिटी बराबर है या नहीं है, एंड देन फाइनल रिकमेंडेशन का काम होगा, TR। एंड इस पूरे को हम लोग कहेंगे टेक्निकल रिव्यू ग्रुप, QRG। चलो अब आगे एम्पनलमेंट ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स। अब देखो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में जो इंडिविजुअल लोग हैं उसको हम लोग कहलाते हैं टेक्निकल रिव्यूअर्स। टेक्निकल रिव्यूअर्स के एलिजिबिलिटी का भी कुछ तो क्राइटेरिया होगा, एब्सोल्युटली है। पहला, he or she must have at least 15 years of post qualification as a CA and currently should be in practice। दूसरा, उन्होंने एटलीस्ट हैंडल किया होना चाहिए एज अ साइनिंग पार्टनर for more than 3 years, 3 statutory assignments as the central statutory auditor of a bank, public limited companies, government companies, private companies having annual turnover of 50 crores or more, ठीक है, during last 10 years। मैंने कहा देख, अगर आपको टेक्निकल रिव्यूअर बनना है ना तो आपको एटलीस्ट 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट खुद एज अ साइनिंग पार्टनर हैंडल किए होने चाहिए, कुछ तो बड़ा काम करना चाहिए। अब देखो, आपने इन 3 बड़े काम में से तीनों के 3 प्राइवेट कंपनी का काम किया। मैंने कहा नहीं, खाली प्राइवेट कंपनी का काम कर रहे हो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ये इनफ नहीं। सो आउट ऑफ दिस 3 एटलीस्ट वन एंगेजमेंट मस्ट बी अदर देन प्राइवेट कंपनी, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज ऑफ अ बैंक, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज। इसका एटलीस्ट एक काम तो होना चाहिए। रिकैप, कौन बन सकता है टेक्निकल रिव्यूअर? जिसके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस है एंड आज के दिन पे
वो प्रैक्टिसिंग है। दूसरा, उसने 3 एज अ साइनिंग पार्टनर ऐसे क्लाइंट्स का ऑडिट किया है जो कि बैंक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 50 CR। सो ऐसी बड़ी कंपनीज का ऑडिट आपने मिनिमम किया होना चाहिए। अब टेक्निकल रिव्यूअर ने क्या किया? बैंक का ऑडिट कभी नहीं किया, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कभी नहीं किया, पब्लिक सेक्टर कंपनी का ऑडिट कभी नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ऑडिट किया है एंड कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज का भी ऑडिट किया। सो यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाली प्राइवेट कंपनी विल नॉट वर्क वेल। सो आउट ऑफ 3 एटलीस्ट 1 मस्ट बी आउट ऑफ बैंक, गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनीज। एटलीस्ट 1 मस्ट बी अदर देन प्राइवेट कंपनीज। ठीक है ना? QRB जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया 11 मेंबर्स का होता है। सो जो टेक्निकल रिव्यूअर होता है, ही शुड नॉट करंटली बी अ मेंबर ऑफ QRB। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का काउंसिल मेंबर भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया टाइम टू टाइम QRB इस्टेब्लिश करता रहता है। QRB हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि आप ये सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करो, बट आपका रेपुटेशन नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड। समझो क्या है, जब भी एक टेक्निकल रिव्यूअर को हम लोग अलाउ करते हैं कि हाँ सर आप टेक्निकल रिव्यूअर बन जाए, तो इनका कितना पीरियड रहेगा? 3 years का पीरियड रहेगा, सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन कि सारा का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, तो आपको 3 साल के लिए टेक्निकल रिव्यूअर घोषित कर दिया जाए। बट हाँ, इन बिटवीन अगर आपने कोई मिसकंडक्ट कर लिया, कोई नेग्लिजेंस कर लिया, कोई डिसिप्लिनरी काम कर लिया, तो बॉस आपको एक ब्लॉक के बीच में से भी रिमूव किया जा सकता है। इट इज नॉट अ गारंटी कि हाँ 3 साल मिलेगा ही मिलेगा। यू शुड अंडरगो द स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स। ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, टेक्निकल रिव्यूअर में ऑल्सो बी ऑफर्ड विथ रिन्यूअल। ठीक है, बट इतना ध्यान रहे, जैसे ही आपको टेक्निकल रिव्यूअर कहलाया जाता है, आप जिस दिन पे टेक्निकल रिव्यूअर कहलाए जाओगे, आपके प्रीवियस 3 years का रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट 3 years का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। आपके प्रीवियस 3 years में भी अगर आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत गिल्टी ठहराया है, यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज टेक्निकल रिव्यूअर। सो द रिव्यूअर शुड नॉट हैव एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। मतलब आप बस पिछले साल जेल से बाहर आए हो, अब बोलते कि सर अब मैं संत बनूंगा, अब मैं टेक्निकल रिव्यूअर बनूंगा, नहीं चलेगा। ठीक है, एनी पीनल एक्शंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 years। ठीक है, तो पिछला 3 साल हम देखेंगे कि आपका कोई बैड नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैम नेक्स्ट 3 years क्यों बोला आपने? क्योंकि बेटा मैंने अभी अभी आपको बोला टेक्निकल रिव्यूअर नेक्स्ट 3 years के लिए एक स्लॉट अलॉट करते होंगे, तो नेक्स्ट 3 years में अगर बीच में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो आपको रिमूव कर दिया जाए। फर्दर हम लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा कि यस हम लोगों ने सारा का सारा ट्रेनिंग जो एक टेक्निकल रिव्यूअर को लेना होता है वो लिया है। So this is eligibility criteria, the most important and expected exam question. Very important exam. Various stages which are involved in conducting the quality review assignments. कि quality review assignments में क्या क्या steps और stages हैं? सबसे पहला होता है selection of audit firm, audit file select करना and technical reviewer को identify करना। QRB shall send the offer letter to technical reviewer. QRB shall send the offer letter to technical reviewer कि technical reviewer आपको audit firm में जाना है, review करना है। जैसे ही technical reviewer accept कर लेगा, ये सारा necessary declaration documentation देना होगा QRB को। Intimation दिया जाएगा audit firm को कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। Sending the copy of intimation, providing the contact details, फिर अफूर और टेक्निकल रिव्यूअर आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। देखो, डायरेक्टली टीआर विल सेंड द क्वेश्चनर टू अफूर, इसके बाद टीआर विल विजिट अफूर आफ्टर प्योर प्रॉपर प्लानिंग ऑन साइट रिव्यू,
टीआर विल सेंड पूरा रिव्यू होने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। अफूर रिप्रेजेंटेशन भेजेगा कि सर नहीं 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 ऐसा नहीं था, मैंने तो सही किया था, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी और द एंटिटी फॉर द ईयर टू द बोर्ड। हम लोग अपने लेटर हेड पे 45 डेज के अंदर अंदर ये पूरा क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। टेक्निकल रिव्यूअर शैल सेंड द फाइनल कमेंट्स टू क्यूआरबी। अब टेक्निकल रिव्यूअर को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का रिजल्ट्स मिला है, आंसर्स मिला है, क्यूआरबी को हम लोगों ने ये सारा चीज भेज दिया है। अब क्या करेगा, पूरा ग्रुप, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बैठेगा, ठीक है। अब ये दोनों डिस्कस करेंगे। देखो, रिक्वेस्टिंग द फर्म टू सेंड टू सबमिट द सबमिशन टू द बोर्ड विद इन 7 डेज। जैसे ही टेक्निकल रिव्यूअर ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू नेक्स्ट 7 डेज में अपना खुद का कमेंट्स भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेक्निकल रिव्यूअर shall submit within 7 days the summary of their findings along with the final report. Quality review group will consider the report of TR technical reviewer and the responses of AFUR. Quality review group अगर चाहे तो additional responses मंगा सकता है। Quality review board then finally will discuss the final course of action. मैम यहाँ पे follow on वगैरह रिव्यू करना वो सब आएगा क्या? आएगा। What is the final course of action? इस पे लगाओ तारा और तारे को लेकर के आओ जमीन पर। एक सेकेंड, इंडिपेंडेंस, तारे जमीन पर। पॉइंट नंबर 9, what are the actions, what are the recommendations by quality review board or the consequences of non compliances? देखो, अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को नॉन कंप्लायंसेस दिखा है तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है, ये केस रेफर कर सकता है टू डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ऑफ आईसीएआई, एक एडवाइजरी गाइडेंस नोट इशू कर सकता है, नॉन कंप्लायंसेस का पूरा चिट्ठा पिट्ठा लेकर के रेगुलेटरी बॉडीज को दे सकता है, आरओसी, एमसी, इन सबको दे सकता है, अफूर को इंटीमेट कर सकता है ऑडिट फर्म की यार आपके खिलाफ ये सारा चीज पेंडिंग है, अब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, जो एक्शन लेंगे वो उनको इंटीमेट करेंगे एंड कंसिडर करेंगे कि यार आपकी फर्म में इतने सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं, बताओ किसका ऑडिट करके आए हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैटर को कंसिडर करते हुए हम लोग डील करेंगे विद दैट ऑडिट फर्म, ठीक है। सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फाइनली क्या एक्शन ले सकता है ऑन नॉन कंप्लायंसेस, पॉइंट नंबर 9, समझे? पक्का शॉट, 100%। मैम नॉन कंप्लायंसेस का क्या मतलब होता है? नॉन कंप्लायंसेस का मतलब होता है दैट देयर इज द नॉन कंप्लायंसेस इन फॉलोइंग द टेक्निकल स्टैंडर्ड, लॉज, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज है, नॉन कंप्लायंसेस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो ये सारी चीज़ों में अगर नॉन कंप्लायंसेस है तो हम लोग ये कहेंगे कि बॉस जो टेक्निकल रिव्यूअर है विल क्वालिफाई द क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो ग्रीन कलर से उन्होंने कॉस्मेटिक अमेंडमेंट किया है ना बच्चों, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप पढ़ने जाओ तो जस्ट ये इतने इतने वर्ड ऐड किए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के वर्डिंग्स है ना, अमेंडेड है, बिकॉज ये कंटेंट अमेंडेड है, हाईली चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। सो मैम जब भी टेक्निकल रिव्यूअर अपना रिपोर्ट देगा, द रिव्यूअर शैल कंसिडर द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड शुड डॉक्यूमेंट द ओवरऑल process, overall conclusion with respect to point number 1, the policies, the policies and the procedures, technical and ethical requirements follow किया है कि नहीं, independence है कि नहीं। you remember areas, जो एरियाज हम लोगों ने चेक किया उसी एरियाज को कंसिडर करेंगे, उसी एरियाज में एविडेंसेस इकट्ठा करेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। इंडिपेंडेंस, ट्रेनिंग टू स्टाफ, कंसल्टेशन, स्किल्स, प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, अफूर ने जो प्लान और ऑडिट वर्क कंडक्ट किया है, ऑडिट फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फर्म ने कंप्लायंस किया है कि नहीं विद लॉज एंड रेगुलेशन। सो दिस इज द ऑडिट फर्म, द टेक्निकल रिव्यूअर विल इशू द ऑडिट रिपोर्ट के यार टेक्निकल रिव्यू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट।
So this was something which was very relevant, very important. Now coming back here. ये था स्टेप वाइज मैंने आपको बताया कि हाउ क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस इज कंप्लीटेड. आज आपका होमवर्क है स्टेज वाइज सेम चीज़ों को फिर से पढ़ना. ठीक है, तो ये स्टेज वाइज में भी दे हैव गिवन द सेम पॉइंटर, सिर्फ स्टेज वाइज और स्टेप वाइज का फर्क है कि कौन है, कैसे रिपोर्ट देगा और कैसे नहीं देगा. दिस इज रिपोर्ट टेक्निकल रिव्यूअर का. यहाँ तक आज आपका सिर्फ जेआर करने का काम, सिर्फ जस्ट रीड करना. जो मैंने अभी भी आपको समझाया ना, वो उन्होंने स्टेज वाइज करके सेम टू सेम बातें फिर से लिखी. तो प्लीज रीड इट वंस. जॉइंट रिपोर्ट. जॉइंट ऑडिटर्स को अगर हम चाहते हैं जॉइंट ऑडिटर्स का रिव्यू हो, सो ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स review report in respect of all the joint auditors of the entity shall be considered together by QRG. If technical reviewer finds the response of another joint auditor requires any particular observation, he may, through QRB, communicate the findings through the audit firm. Technical reviewer shall submit the final report after giving reasonable opportunity of being heard to audit firm under review. तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी देखो, मैंने सुना है कि ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, इसका ऑडिट कर रहे हैं मिस्टर अमर, मिस्टर अकबर, मिस्टर एंथनी. हमने इन तीनों की ऑडिट फर्म को अंडर रिव्यू ले लिया. मैं हूँ टेक्निकल रिव्यूअर. अगर मैं चाहूँ कि यार अमर और अकबर ने तो बराबर किया है बट एंथनी का जो काम है ना थोड़ा सा डेफिशिएंट है, सो कैन आई कॉल फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर एंथनी? यस. कैन आई क्रॉस क्वेश्चन अबाउट द डिलिजेंस एंड द नेग्लिजेंस? यस. So that was a concept of joint audit. And फिर recommendation देना, non compliances है कि नहीं. इसके बाद members of QRB as well as QRG may be entitled for the sitting fees. Obviously जो members है QRB के QRG के, other than those who all are members of council, क्योंकि council members को तो fees मिल ही रहा है. दोस्त जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है जिसको सीजी ने बैठाया है, सीजी ने नॉमिनेट किया, उनको फीस मिलेगी. मेंबर्स क्यूआरजी क्यूआरबी नॉमिनेटेड बाय आईसीएआई काउंसिल विल नॉट बी एंटाइटल्ड, बट जो एक्सटर्नल पर्सन है, दोज हु आर अटेंडिंग द मीटिंग, उसको पैसा मिलेगा. ठीक है. क्वालिटी रिव्यू टीम में नोट, इट इज नोट अ नॉन कंप्लायंसेस विथ वन और मोर standards, accounting standards, auditing standards, or the disclosure requirement. Evaluations of the finding in light of the consideration, what are the responses given by the engagement team, what is the level of materiality, accounting and auditing practices क्या है. If the non-compliances is find out, तो किस चीज़ का non-compliances है, कोई alternative procedures किया जा सकता था क्या. Very simple. This is composition of review team. कि यार एक टीम जो भी अफूर का रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग होंगे, टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑडिट फर्म. एक हेड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल रिव्यूअर, जिसके बारे में बात चल रही है. इसके साथ वो लेके जा सकता है 5 असिस्टेंट. पीयर रिव्यू में सिर्फ एक असिस्टेंट अलाउड था. नो फर्म विल बी अलाउड टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ रिव्यू टीम. फर्म नहीं चलेगी, इंडिविजुअल पर्सन ही मेंबर बन सकता है ऑफ टेक्निकल रिव्यू. टेक्निकल रिव्यूअर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, खुद की कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए 3 इयर्स प्रायर में. उन्होंने खुद ने या फिर उनके कोई नेटवर्क फर्म्स ने उन कंपनीज को ऑडिट नहीं किया जिनका ऑडिट अभी अफूर कर रहा है इन द पास्ट 3 इयर्स, क्योंकि जलन वाली फीलिंग आ जाएगी. शुड नॉट हैव एसोसिएटेड विद अफूर इन पास्ट 3 इयर्स. उसने एज वेल एज उनके नेटवर्क फर्म या पार्टनर ने. ही इज़ वेरी मच क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर. वो उनके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं है. एंड हाँ, टेक्निकल रिव्यूअर एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू दोनों सेम सिटी रीजन से नहीं होने चाहिए, तो भाई भाई हो जाएंगे. तो दोनों अलग अलग सिटी या रीजन से होने चाहिए. दोनों सेम सिटी या रीजन से नॉट अलाउड. मैम असिस्टेंट क्या क्वालिफाइड होना चाहिए? ये हैज टू बी अ सीए. उसके अगेंस्ट में भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए. ही हैज टू साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. He should not directly interfere either with अफूर और बोर्ड. उसने एटलीस्ट 1 साल एज अ मेंबर काम किया है
एज अ पार्टनर काम किया है इन अ सीए फर्म. ही शुड नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद अफूर लास्ट 3 years में. सेम जो टेक्निकल रिव्यूअर का था उसके अगेंस्ट में भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं है. करंटली ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ QRB. ही शुड हिमसेल्फ नॉट बी एम्पैनल्ड एज टेक्निकल रिव्यूअर. अगर वो टेक्निकल रिव्यूअर है तो वो असिस्टेंट क्यों बनेगा भाई? तो ये था रिक्वायरमेंट्स ऑफ असिस्टेंट. So the next concept goes like this: guidelines for technical reviewer. बोलता है कि टेक्निकल रिव्यूअर इनको खुद को जाना है अफूर के ऑफिस में ऑन साइट रिव्यू करने के लिए. टेक्निकल रिव्यूअर को भी टेक्निकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है. उनको फेमिलियरिटी ज़्यादा नहीं शो करनी है. टेक्निकल रिव्यूअर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट इनको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस जब भी लेने मिल रहा है तो ही शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. उसको ऐसा नहीं करना है कि वहाँ से डिटेल्स लेकर के किसी और को बताएं. So in order to maintain confidentiality, we will not make any copies or extract. हम लोग हमारे documentation के लिए फाइल करके रखेंगे, बात अलग है. Technical reviewer shall provide the detailed comments and the proper justification for the review. Technical reviewer shall refer to other guidance जैसे कि quality review board time to time देते जा रहे हैं कि ऐसे रिव्यू करो, वैसे रिव्यू करो, उन सबको फॉलो करना है. Technical reviewer is required to segregate his observation between the material observations and non-material observation. कि this is a material deficiency. यार ये लोग independence check नहीं कर रहे. This is the material deficiencies कि ये लोग consultations जिनके पास से ले रहे हैं उनको knowledge नहीं है. Immaterial deficiency कि first year article को training कम है. Immaterial deficiency क्योंकि first year article in the progress of audit gains the knowledge. Technical reviewer should build in the review process कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस हिसाब से जो ऑडिट फर्म है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. टेक्निकल रिव्यूअर स्पेसिफिकली इंक्लूड अ सेपरेट पैराग्राफ विथ रिगार्ड्स टू द एडिक्वेसी ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द स्टैट्यूटरी ऑर्डर. बोलता है जो भी टेक्निकल रिव्यूअर ऑडिट फर्म का रिव्यू करेगा वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा कि जो ऑडिट फर्म का हमने रिव्यू किया है वो फ्रॉड डिटेक्ट करने में, फ्रॉड को रिपोर्ट करने में, फ्रॉड को किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को असेस करना है, इसमें सक्षम है या नहीं इन देयर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो दीज आर सम गाइडलाइंस टू टेक्निकल रिव्यूअर. ये सारा चीज हुआ. कंसिडरेशंस ऑफ रिपोर्ट बाय क्वालिटी रिव्यू ग्रुप. जैसे मैंने आपको कहा ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू टू, द टेक्निकल ग्रुप, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड जेनेरिक ग्रुप. So technical reviewer prepares a report over the review of general purpose financial statements. So the report prepared by TR will be considered by review group. Review group then finally will submit the report to QRB, Quality Review Board. The report of the group shall expressly state that कौन से entity, enterprise, the particulars of the enterprise, details and the descriptions of the non-compliances, descriptions of the evidences to support the non-compliances and the recommendation action कि यार QRB इनके खिलाफ एक्शन लो, इनको बैन कर दो, 3 महीने के लिए प्रैक्टिस कैंसिल कर दो. तो ये सारा चीज QRG करेगा एंड QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को देगा. एक्शंस एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट विथ रिगार्ड्स टू मैकेनिज्म फॉर द फॉलो अप ऑफ रिव्यू फाइंडिंग्स. देखो बच्चों, अगर हमको लगता है कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट फर्म इज वीक तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड शैल रिक्वायर द ऑडिट फर्म टू सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट कि सर आपने जैसा बोला था ना, मैंने वैसा वैसा पूरा काम कर दिया, फॉर अडॉप्टिंग द नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड द अडेरेंस ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इवन फॉलो अप करवा सकता है करेक्टिव एक्शंस के लिए, फिर से ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू करवाना. अगर हमको लगे जो करेक्टिव एक्शंस लिए हैं वो अभी भी नॉट अप्रोप्रिएट है तो हम लोग फाइनल एक्शंस ले लेंगे. अभी भी नॉन कंप्लायंसेस कंटिन्यू है तो हम लोग फाइनल एक्शंस ले लेंगे. काउंसिल ऑफ ICAI को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि ये सक्षम ही नहीं है ऑडिट करने के, इनका COP कैंसिल किया जाए. सो हॉरिजॉन्टल एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ साइट मॉनिटरिंग, ऑन साइट रिव्यू विल बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री वाइज इश्यूज अक्रॉस द ऑडिट फर्म. मतलब क्या, अगर हमको लगा कि जो अफूर का रिव्यू हमने किया इसने बैंक ऑडिट में बहुत नेग्लिजेंस किया, अब सारे जो डिफरेंट बैंक्स है ना उसके ऑडिटर्स का रिव्यू करवाया जाएगा कि यार ये बैंक ऑडिट में
इनहेरेंट लिमिटेशंस तो नहीं, बैंक ऑडिट में हर कोई फर्म जो ऑडिट कर रहा है वो इतना नेग्लिजेंटली काम तो नहीं कर रहा. सो हॉरिजॉन्टल इन डेप्थ एनालिसिस इंडस्ट्री वाइज करेंगे कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ऑडिट किया है वहां पे कोई वीकनेस तो नहीं इन मेंटेनिंग अप द क्वालिटी. ठीक है, सो दैट वाज द फॉलो अप एंड रिव्यू मैकेनिज्म. द लास्ट पॉइंट, बेसिकली दिस इज एन एडेड पॉइंट, इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. चेंजेस इन द रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एंड क्वेश्चनर. देखो, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम may change or issue a new level of the final reporting. So format of final reporting, quality review program, general questionnaire, ये सारा चीज़, ethical independence, LEHAM, ये सारा चीज़ हमारा quality review board डिसाइड करता है. क्वेश्चनर के नाम पे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई बीइंग टेक्निकल रिव्यूअर विजिटिंग द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, तो हम लोग सैम्पलिंग के बेसिस पे, सिलेक्टिव टेस्ट बेसिस पे भी जो क्लाइंट्स का ऑडिट इन्होंने किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं. सो हाउएवर, when the quality review board is of the view in the lights of international practices, there has to be some change in laws, regulations and experience gain. It may amend or modify these questionnaire, these report का format as and when, time to time and as they may deem fit. बोलते हैं quality review board को जैसा ही ठीक लगे वो लोग questionnaire and report का format change करते रहेंगे. So that was all about the quality review as a chapter. ठीक है, यहाँ पे बच्चों all the concepts of quality review comes to an end. Just a small understanding, just a minute. Yes, I'll just take you to what to study. ये what to study में just wanted to mark some of the important concepts, क्योंकि ना past examination question में इतने ज़्यादा question नहीं आए हैं. This chapter is a newly introduced chapter. सो पास्ट एग्जामिनेशन में आरटीपी में बहुत कम क्वेश्चंस है जो डिस्कशन के लायक है, इंपॉर्टेंट है. बट अदर देन दिस कुछ कंसेप्ट्स है गाइस जो मैं कहती हूँ कि आने के चांसेस हैं. सो सबसे पहला पॉइंट व्हाट दे कैन आस्क यू इज एरियाज वाला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर्स वाला क्वेश्चन. सो ऑडिट फर्म का सिलेक्शन एंड जहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग ये वाला प्रोसीजर में हम लोगों ने एलिजिबिलिटी वाले कंसेप्ट पढ़े, तो यहाँ पे प्लीज इंपॉर्टेंट करके मार्क कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. एलिजिबिलिटी ऑफ द peer review, technical reviewer, that is TR. एंड और एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज ऑब्लिगेशंस जो मुझे आपको पढ़ाना है. ऑब्लिगेशन ऑफ, जैसे हम लोग ने पीयर रिव्यूअर और प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए पढ़ाया था, सो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर क्या होता है. सी, टेक्निकल रिव्यूअर का ऑब्लिगेशंस होता है टू कंप्लीट द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, टू गिव द रिस्पॉन्सेज अलॉन्ग विद द रीजनिंग, अपना रिपोर्ट सबमिट करा अलॉन्ग विद द डेफिशिएंसीज ऑफ द फाइंडिंग. एंड ऑन द अदर हैंड ऑडिट फर्म का जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है टू प्रिस्क्राइब, टू गिव देम द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस. तो जो पीयर रिव्यू में पढ़ा था ना, वैसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ सकता है कि ऑब्लिगेशन पीयर रिव्यू के लिए ऑलरेडी दिस इज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यहाँ पे बिट इंपॉर्टेंट शायद पूछा जा सकता है. ठीक है, यस. सो सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्यूआरबी, जिसमें साइकिल्स वाला पॉइंट है ना, साइकिल वाला पॉइंट, 5 years, 3 years, 4 years. This point is a valid point which can be asked as MCQ. MCQ. ठीक है. So now you finally complete this small chapter. चल, आज कुछ important questions करने हैं हमें क्वालिटी रिव्यू के. क्वालिटी रिव्यू में 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आया था, ज़्यादा तो नहीं, कुछ अमेंडमेंट्स. तो ये वाला जो चैप्टर है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी फ्रैंकली स्पीकिंग लहर लेकर के आता है, क्योंकि देखो जो चैप्टर में अमेंडमेंट्स होते हैं ना वो इनहेरेंटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, चलो. तो नाउ लेट अस क्विकली फोकस ऑन द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू. अब क्वालिटी रिव्यू शुरू या फिर क्वालिटी रिव्यू हुआ ही क्यों था? देखिए, हम ये चाहते थे ऑडिटिंग जब भी कोई भी फर्म करे, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, अफूर जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, तो जो भी अफूर ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए क्वालिटी रिव्यू आया है.
तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा? वी नीड टू मेक श्योर इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्वालिटी एंड अधेरेंस विद द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो दैट इज द मेजर स्कोप. चलो अभी तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा? जो भी टेक्निकल रिव्यूअर अफूर में जा रहा है, पीयर रिव्यूअर में क्या था? पीयर रिव्यूअर पीयू, वैसे यहाँ पे क्या है? टेक्निकल रिव्यूअर अफूर. तो जो भी टेक्निकल रिव्यूअर अफूर में जा रहा है, विजिट कर रहा है, दे विल एग्जामिन द कंप्लायंसेस वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कंप्लायंसिंग विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अफूर जो है वो क्वालिटी मेंटेन करके अपना ऑडिटिंग कर रहा है कि नहीं. नेक्स्ट स्कोप, वही वाला चीज आ जाएगा. Examining that the engagement partner ensures the compliances with applicable technical, other applicable professional standards. They are complying with laws and regulations. They are complying with quality control standards, review standards, SAs, SREs. इन सबको comply कर रहे हो क्या? नहीं. Next, what are the important areas for evaluating? 6 areas है यहाँ पे. What are the important areas for evaluating while you are conducting the quality review? देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा फंडा सिखाती हूँ आपको. क्वालिटी रिव्यू हम तो आज चेक कर रहे हैं, बट आपको याद है कोई भी एक फर्म हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज हो जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं, तो हमें उनके ऑडिट करते समय क्वालिटी को मेंटेन करना है. राइट. क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के टाइम पे कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे जिसका नाम था SQC1 एंड SA 220. बराबर. ये दोनों ही स्टैंडर्ड बात कर रहा था कि कोई भी एंटिटी का ऑडिट हो रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हैज टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज इंटैक्ट. अभी क्वालिटी इंटैक्ट कैसे रहे? इंडिपेंडेंस, EQCR करवा करके, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा करके, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस को मद्देनजर रखते हुए कि यार कोई क्लाइंट है, एथिकली मैं इसका काम कर पाऊंगा क्या, ये चेक करते हुए हम लोग ये भी चेक करें कि कोई लॉज एंड रेगुलेशंस को कॉन्ट्रावीन तो नहीं कर रहे हम लोग. या सो ये सारा चीज़ था हम लोगों को फॉलो करना इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द ऑडिटिंग. सो अभी कोई टेक्निकल रिव्यूअर आए हमारे फर्म का, वी आर अफूर, वी आर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, वी आर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विसेज. तो अगर कोई हमारे फर्म का क्वालिटी चेक करेगा, मतलब यही सारे पॉइंट्स चेक करेगा कि ये कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, बस यही आंसर है. दीज आर द एरियाज फॉर इवैल्यूएशन बाय द टेक्निकल रिव्यूअर व्हेन दे आर कंडक्टिंग क्वालिटी रिव्यू ऑफ अफूर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू. सो कौन से एरियाज है? 6 एरियाज है स्टूडेंट्स. पहला, क्या फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किया है? क्या EQCR प्रॉपर हुआ है, ऑन टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम पे? ओपिनियन जो एक्सप्रेस हो रहा है उसने देखा है? जो भी पर्सन है इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड रिव्यू द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, दे आर अप्रोप्रिएटली असाइंड टू अ पर्सन. एनुअली लेटर ऑफ कंफर्मेशन हम लोग ले रहे हैं ना, दैट द कंप्लायंसेस ऑफ ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग मेड फॉर द इंडिपेंडेंस, टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस. ऑडिट फर्म इंडिपेंडेंस के कंफर्मेशन के बाद ही कोई नए क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर रहे हैं. ऑडिट फर्म इज कंटिन्यूसली मेकिंग their staff equipped with the trainings, the education provided, because हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी टीम है उनको एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी हो सच दैट हमारा ऑडिट का काम क्वालिटी के साथ हो. सो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं. पहला, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं? क्या EQCR अप्रोप्रिएटली प्लान्ड है? क्या हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं एक्सपीरियंस? और क्या हम लोग EQCR सिस्टम जो है वो मॉनिटर करते हैं? Acceptance and continuance, independence, and last, education and training. Education and training. So when you are reading this question from Sawal, make sure that you write the mini points out over here in the margin. जब भी आप रिवाइज करो, it will be very easy for you. कि खाली ये 6 पॉइंट्स ऐसे याद रखना. नेक्स्ट, अभी इतनी बार हम लोग कह चुके हैं अफूर को कंप्लाई करना है एथिकल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिव्यू? देखो, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है ऑल द गाइडेंस नोट ऑन ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 133. ये सब कुछ जो ICAI ने प्रिस्क्राइब किया है इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा, ऑल दिस बिकम्स द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर द फूड. तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ये सेम एज पीयर रिव्यू था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय 133, quality control standards, all the relevant laws and regulations,
गाइडेंस नोट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारा सब कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड होगा. नेक्स्ट, what is a quality review process? What is the quality review process which is actually taking place? तो यहाँ पे quality review में various stage होते हैं. अफूर को सिलेक्ट करना, अफूर को सिलेक्ट करने के बाद टीआर को आइडेंटिफाई करना. व्हाट इज टीआर? अफूर. मैं पहले यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रही हूँ, जो लोग हमारे रेगुलर क्लास में नहीं बैठे उनके लिए ये खास. एएफ का मतलब होता है ऑडिट फर्म. ऑडिट फर्म इज इक्वल्स टू एएफ. TR is equals to technical reviewer. TR is equals to technical reviewer. Yeah. So acceptance by technical reviewer. Intimation to अफूर दिया जाएगा. अफूर एक प्रपोज प्लान बनाएगा कि ठीक है अफूर देखो दो चीज़ हो रही है. अफूर का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है और टेक्निकल रिव्यूअर जा रहा है. तो सबसे पहले अफूर को सिलेक्ट किया जाएगा. सिलेक्शन करने के बाद टीआर को इंटीमेट किया जाएगा. टीआर अफूर के यहाँ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इंप्लीमेंट करेगा ऑन साइट जिसको हम लोग कहते हैं. ये होने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया जाएगा. देयर इज ऑल्सो वन मोर पर्सन जो QRG होता है. QRG क्वालिटी रिव्यू देखो ऑन साइट होगा. एंड देन हम लोग QRG को फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे. सो QRG रिपोर्ट को कंसिडर करेगा और उसका रिस्पॉन्सेज जो है वो अफूर को रिपोर्ट करेगा कि अफूर हमको ये चीज़ें आप में डेफिशिएंसी मिली है. देन फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड बाय QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, पीयर रिव्यू प्रोसेस में अमेंडमेंट आया था कि पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज. आपके मॉड्यूल में लिखा जाता है कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्वालिटी रिव्यू खत्म हो जाना चाहिए. तो यूजुअली दिस इज 45 डेज क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट, this is important expected exam question. Reviewer, based on the conclusion drawn from the review, shall issue preliminary report and subsequently the final report. A clean report indicates that the reviewer is of the opinion that the affairs conducted in a manner that ensures quality of the services rendered. मतलब अगर TR ने एकदम ही clean report दे दिया है, वो ये assurance दे रहा है कि जो अफूर है वो एकदम ही सही तरीके से audit का काम कर रहा है. However, the reviewer may qualify the report due to one or more reasons. Now the question starts. In the view of above, give some examples. कौन सी ऐसी situations होगी जहाँ पे technical reviewer should या फिर may give the qualified opinion. जब भी हमको लगता है कि आप quality को compromise कर रहे हो, act को follow नहीं कर रहे हो, standard को follow नहीं कर रहे हो in order to standards को follow नहीं कर रहे हो in order to perform auditing engagement. तो ये सारी स्थिति में हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? इट मे बी ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन, डेफिशिएंसीज इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, नॉन कंप्लायंसेस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग. तो रिमेंबर मैं अभी आपको पॉइंट पढ़ा करके कौन से एरियाज में आपको इवैल्यूएशन करना, उसी एरियाज में अगर नॉन कंप्लायंसेस और डेफिशिएंसी दिखे यू विल बी इशूइंग क्वालिफाइड रिपोर्ट. What are the reporting responsibility of the technical reviewer while carrying out the quality review engagement? देखो समझो यहाँ पे when we talk about reporting responsibility, technical reviewer को अपना opinion देना होता है on the system of quality control maintained by audit firm under review अफूर. So whether they are well eligible to perform the attestation engagement, whether they are well eligible to perform all the professional engagements or not. ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है. गिव सम एरियाज, कौन से एरियाज में ऑडिटर कैन रिपोर्ट क्वालिफिकेशंस. नॉन कंप्लायंसेस वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे. इसको कट कर दीजिए स्टूडेंट्स क्योंकि इट इज सेम एज अबाउ. नॉन कंप्लायंसेस यही है एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट, लिस्ट आउट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नोटिस मेजर नॉन कंप्लायंसेस. मतलब क्या, टेक्निकल रिव्यूअर ने मेजर नॉन कंप्लायंसेस देखा है एंड ये मेजर नॉन कंप्लायंसेस किसके ऊपर है? ये मेजर नॉन कंप्लायंसेस हमको मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल. ये सब कुछ हमको नॉन कंप्लायंसेस मिल रहा है. अगर हमको ये नॉन कंप्लायंसेस मिल रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है?
सॉरी, QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है? QRB आपका मैटर रेफर कर सकता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इनको रेफर कर सकता है कि सर आपने कैसे इंसान को प्रैक्टिस करने का मौका दे दिया है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, क्वालिटी को तो फुल्ली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दिस इज अनफेयर. इन्फॉर्मिंग द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस टू रेगुलेटरी बॉडीज, जो MCA है, सेबी है, उनको बताना. इंटीमेटिंग द कंसर्न्ड ऑडिटर, जिसका रिव्यू हो रहा है, अफूर को बताएंगे कि अफूर यार ये सही नहीं किया तूने, तेरे ऐसे काम के कारण, तेरे ऐसी गंदी 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 सर्विसेज, मतलब इट इज नॉट हैविंग अ क्वालिटी, ये जो सर्विसेज है उसकी वजह से वी आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू. हम आपका मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, हम आपका COP कैंसिल कर सकते हैं. तो ये सारा चीज़ उनको इंटीमेट करना एंड यू कंप्लीट द मैटर अकॉर्डिंगली. आने के फुल ऑन चांसेस हैं. अगेन फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन द बोर्ड नोटिसेस मेजर नॉन कंप्लायंसेस, मेकिंग रिकमेंडेशन. अफूर को बोलेंगे कि प्लीज़ क्वालिटी सुधार लो भाई ऑडिटिंग सर्विसेज की. रेगुलेटरी बॉडी को बोलेंगे, अफूर को बताएंगे कि हमने आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है. कंसिडर द मैटर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड फॉर. नेक्स्ट, evaluating the professional judgment exercised by the auditor is one of the important aspects under the quality review. Explain the situations with reference to, देखो यहाँ पे ना ऐसे 200 के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस, ऐसे 200 के हिसाब से हम लोग जजमेंट लेते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर टेक्निकल रिव्यूअर अफूर जा रहा है, अफूर काफ़ी सारे एरियाज में जजमेंट लगाता है. मैंने कहा हाँ, अगर ये जजमेंट लगा रहा है तो ये जजमेंट के केस में बीइंग टेक्निकल रिव्यूअर आपको क्या चेक करना है? देखो जजमेंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन अजम्पशंस. तो हम लोग ये करेंगे कि जजमेंट्स विच आर रीच्ड आर ओनली विथ रिगार्ड्स टू द ड्यू कंसिडरेशंस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Whether the judgment is appropriate in the light of and they are consistent with the circumstance. जैसा जजमेंट लेना चाहिए था वैसा ही लिया है. So whenever अफूर is exercising professional judgment, तो these are the important aspects under quality review जो हमको चेक करने हैं कि प्रोफेशनल जजमेंट ऐसे ही रैंडम बेसिस पे नहीं लिए. प्रोफेशनल जजमेंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम लोग यूज करते हैं, वुड अप्लाई. ठीक है. So these were few of the very important questions with regards to quality review.